میں ویلکم کرتا ہوں جی عاطف منیر صاحب, پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور ہمارے لائنس کلب کے بھی سیکنڈ وائس ڈسٹرکٹ گورنر. تو میں سب سے درخواست کروں ان کی کلبنگ کروں. ہال انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا اور ہمارے لیے ممکن ہوا کہ شاہ شعیب ہاشمی انگلینڈ سے چیف لائے تھے اور ایک اچھا سیشن ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تو کنٹینیو سر. امید کرتے ہیں جی ہمارے پاس تشریف کا بہت شکریہ جی. میں وہیں سے شروع کرتے ہیں, توجہ ہے سبھی کی. تو ہم کہاں تک پہنچے تھے سیکوینس کے ساتھ کہ ہمارے پاس کیا ہے, ایک سیکوینس ہے کوریڈور کا, کمرے کا, کوریڈور کا, کمرے کا. اس میں کمرے کیا ہیں, نیورونز, ٹھیک ہے. اور جو بیچ میں کوریڈورز ہیں وہ پتہ ہے کیا بیچ میں, وہ ہے اسپیس ہیمٹل. یہ ٹھیک ہو گیا. آپ توجہ کیجیے گا, ہوتا یہ ہے ایک نیورون سے جب ویو جاتی ہے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک وہ کیمیکل فارم میں جاتی ہے. کس فارم میں, کیمیکل فارم میں. اب جب وہ اس دیوار کو ٹچ کرتی ہے, وہ قدرت کے نظارے دیکھیے یہاں پہ, اس دیوار کو ٹچ کرتے ہی وہ کیمیکل فارم جو ہے وہ الیکٹریکل فارم میں چینج ہوتی ہے اور برآمدے میں وہ الیکٹریکل فارم میں وہ ٹریول کرتی ہے. اگلے برآمدے کی دیوار کو جو ہی ٹچ کرتی ہے وہ الیکٹریکل فارم پھر کیمیکل میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اگلے دیوار میں کیمیکل, اگلے برآمدے میں الیکٹریکل, اگلے کیمیکل, الیکٹریکل, کیمیکل, الیکٹریکل. یہ آپ کے کہاں سے, آنکھ سے لے کے دماغ تک, دماغ سے لے کے ٹنگ تک, دماغ سے لے کے چیخ تک, جب آپ بولتے ہیں یہ سارا پروسیس چلتا ہے. اور یہ کتنی دیر میں یہ پروسیس ہوتا ہے؟ اتنا خوبصورت نظام رب نے آپ کو دیا ہے. اور وہ بچہ اگر آپ کے پاس آ جائے نیورو ڈائیورسٹی کے ساتھ اور آپ کو نیورون کی سمجھ بھی نہ ہو اور آپ کو اسپیچ اور لینگویج پہ لگ جائیں تو کتنا بڑا ظلم ہے. آپ اتنی گہرائی میں جائیں, اس کو سمجھیں, تبھی اس کے ساتھ میں نے کہاں پہ کام کرنا ہے. اب میں آپ کو اگلی اسٹیج پہ لے کے جاتا ہوں. تو نیورون کا کیا کام ہو گیا, توجہ رکھیے گا. نیورون کا کام کیا ہو گیا نیتا, نیورون کا کام یہ ہو گیا سگنلز کو لینا, پہلی بات. دوسری بات آپ کی ان کو نہیں, ان کو پروسیس کرنا. اب نیورون کے اندر پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے بھائی, نیورون کے اندر پوری فیکٹری ہے. اس نے سگنل کو لیا, دیکھیں نا بات سنیں میری, وہ فیک بھی تو ہو سکتا ہے نا. کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کاکروچ ہے, پھر دیکھتے ہیں وہ مرے ایسی میں بھی نسل لگی ہے, وہ مرا ہوا پکڑا رک جاتی ہے, مرے جانور پکڑا اس کو باہر نکال دیا, ٹھیک ہے. تو وہ کس نے پروسیس کیا. کبھی آپ کو شاعرہ بھی ہو جاتا ہے, چھپکلی پر بھاگتی ہے, پھر دیکھیں ہم نہیں ہے زیادہ شاعرہ تھا, یہ چھپکلی تو نہیں تھی, اب پھر رک جاتی ہیں وہاں پہ. تو کس نے پروسیس کیا, بولیے نا. آپ کے نیورون کے اندر فیکٹری ہے بھائی. وہ نیورون پھر نیورون جو ہے وہ آپ کے دماغ کو کوستا ہے, وہ سینسری نیورون کو کوستا ہے, آنکھ کو. بھائی تم نے مجھے غلط دکھائی ساری چیزیں, میں بھی بھاگ بھاگ کے ہلکان ہو رہا تھا. یہ سارا پروسیس آپ کے نیورون کے اندر لگا ہوگا. تو پھر پہلا کام کیا ہو گیا, ٹرانسمیٹرز کو لینا کیمیکلز کی فارم میں, ان کو کیا کرنا, پروسیس, پھر کیا کرنا, ٹرانسفر, جو آپ نے پھر ان کو ٹرانسفر کرنا. یہ نیورون کی جاب ہو گئی. اب جب نیورون کی یہ جاب ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے نیورون, تو نیورون کی کتنی اقسام ابھی تک آپ کے ذہن میں آ گئی, نیورون کی کتنی اقسام آپ کے ذہن میں ہیں. Think for 10 seconds please, then come back to me. I'll ask you the question, you answer that. How many types are there for the neuron? You can ask, you can talk to your right and left neuron. ابھی سوال نہیں پوچھا, ڈاکٹر نیورا سے نہیں پوچھا. جی ڈاکٹر نیورا, پہلے ٹائپ بتائیے کیا ہے نیورون. سینسری نیورون, ایک پوچھا آپ سے. سینسری نیورون پہلی ٹائپ آپ کے سامنے آ گئی, کون سی, سینسری نیورون. یہ آپ کو بولنا نہیں چاہیے. جی دوسری ٹائپ آپ سے سوال نہیں پوچھا, آپ بتائیے. موٹر نیورونز, ویری سمپل, موٹر نیورون, بہت اچھا, تھینک یو ویری مچ. جی تیسرا سوال جو ہے میں نے اپنی بہن کو خاموشی کروا دیا, بالکل اب ان سے پوچھتے ہیں, آپ بتائیے. یہ میں خود پوچھ رہا ہوں آپ سے, اب سوال کا جواب تو دیں گے نا, ایسے نہیں ہو سکتا. چلے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ جو تیسرا نیورون ہے ہمارے پاس, وہ ہمارے پاس ہے تھینک یو, ویل ڈن, امپریسڈ. انٹر نیورونز,
इंटर न्यूरॉन्स, जो कि न्यूरॉन्स के बीच में पैगाम रसानी का काम करते हैं, ठीक है। और ये तीनों न्यूरॉन्स कहाँ से ऑर्डर लेते हैं? बोलिए, आप बोलिए, सीधा बोल दो। सेंसेशन, मोटर न्यूरॉन्स, इनका मास्टरमाइंड कौन है? ब्रेन, न्यूरॉन तो हो गया ना, नर्वस सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपको पूरा शॉप में जा रहा हूँ, न्यूरो डाइवर्सिटी में, न्यूरो साइंस में सब एक बिग शॉप। A lot of people, everyone thinks that the masterpiece is brain. That's wrong, with due respect. The actual masterpiece is spinal cord. हर बंदा ये जानता है कि वो ये तो दिमाग का है, नहीं भाई, दिमाग तो अलग चीज़ है। दिमाग तो एक ऐसा खजाना है कि हम उसको तो अभी तक मतलब टच ही नहीं कर सके ना। स्पाइनल कॉर्ड, ये चीज़ इसको ध्यान रखिए, ये आपके लिए, टीचर्स के लिए और न्यूरो साइंटिस्ट के लिए बहुत अहम चीज़ है कि दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी में वो पड़ा हुआ है। ये भी एक शॉक है, काफी लोग करेंगे पता स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन क्या होती है फिजिकल, जो आपका होता है ना ब्रेन की एंड जो होता है उसके पीछे समझने एक तो उसकी बढ़ोतरी होती है, जो बढ़ते बढ़ते जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इस तरह से, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, उसके बीच में वो टिश्यू जा रहा होता है आपकी बिल्कुल वो बैक बोन, वो बैक जो होती है बोन्स तक, वो स्पाइन, वो आपके पूरे पेरिफेरल उसको नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपकी जो सारी चीज़ें जो है वो उससे कंट्रोल होती हैं, और उसके बाद जो उसके ऊपर मास्टर जो माइंड बैठा होता है वो फिर आता है ब्रेन, ठीक है जी। तो पहला मास्टरमाइंड आपका, उसमें ब्रेन नहीं होता। तो अभी ये बताइए कि जो आपने सिनेप्स का जो बात की मैंने अभी तक, अब इस बात को वो कीजिएगा, ये न्यूरो डाइवर्सिटी की बहुत अहम बात है। ये न्यूरो डाइवर्सिटी की ये बात को समझना, न्यूरो डाइवर्सिटी की समझ में आपने उसकी दुखती रात पे हाथ रख लिया। दिस इज मदर ऑफ द टॉपिक, दिस इज मदर ऑफ द टॉपिक टू अंडरस्टैंड न्यूरो डाइवर्सिटी। होता यह है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो बरामदा था जिसको हम कह रहे थे, वो उसे कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स पाकिस्तान में साइनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स। अब या साइनेप्स बोल लीजिए, जो सिनेप्स है वो जो एरिया है वो काबुलेट हो जाता है, वो पेनफुल हो जाता है, वो स्वोलन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है, हजार मिसालें हैं। एंड दैट इज द कॉज। मुझे बताइएगा, इस कमरे से अगले कमरे तक अगर वेव ने जाना है और बीच में बरामदा जो कुर्सियों से भरा पड़ा हुआ है, तो आपका पैगाम रसां जो वेव्स हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, कैन दे पास थ्रू दो चेयर, पूरा भरा पड़ा बरामदा का गंदा। अच्छी तरीन वेव्स के जाने के लिए क्या जरूरी है? तो बरामदा कैसा हो, गंदा या साफ? कितना साफ? ट्रांसपेरेंट। बात समझ आ रही है आपको? नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर न्यूरो डाइवर्सिटी स्टार्ट्स। बात समझ आ रही है? न्यूरॉन में प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरॉन्स ठीक है इन मोस्ट केसेस। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो टिश्यू पड़ा हुआ है वो टिश्यू खराब है, सिनेप्स है। तो वो सिनेप्स है बेसिकली वो आपके केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा। तो बच्चा क्या कर रहा है? न्यूरो डाइवर्सिटी का शिकार, ठीक है। वो ऑटिज्म है, ADHD दोनों भी हो सकते हैं, एस्पर्जर, डिस्कैल्कुलेट, ये सारी चीज़ें ओवरलैप, मैंने ऐसे केस भी देखे हैं ये सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही होती हैं। तो ये सारा पैगाम आप तक पहुंचाना जरूरी है। आप इस बात पे गौर करना है कि हमारे यहाँ तक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अमेरिका से जो हमारे पास एक वो आई खेत ABA की फलाने की, याद रखिए मैं किसी मुल्क के, किसी कौम के, किसी के खिलाफ नहीं, उन्होंने बहुत रिसर्च की, बहुत काम किया, लेकिन उन लोगों ने बिजनेस मॉडल पे काम किया। तो जो है UK ने वेलफेयर मॉडल पे काम किया, अमेरिका ने बिजनेस मॉडल पे काम किया। तो एक बंदा आ गया, इसको दे देंगे तुम्हारा स्पीच लैंग्वेज 5000 रुपया, UK में ये चक्कर नहीं है। तो अमेरिका से जो भी चीज़ उसके साथ आई वो बिजनेस मॉडल यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, उनको वो जो टीचर्स हैं 3 माह का डिप्लोमा कर लिया, 1 माह का डिप्लोमा, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं तो वो बेजा तनकीद नहीं कर रहा, उन्होंने काम का आगाज़ किया, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो नीम हकीम
आगे आप बोल दीजिए। नीम हकीम खतरा जान, वो हकीम नहीं है। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा आप लोग भी नीम हकीम ना बने। समझे मसला है, मसला मैंने आपके सामने अभी रख दिया और इतनी आसानी से रख दिया, आप सभी को समझ लिया माशाल्लाह से। भाई न्यूरॉन है, अगला न्यूरॉन है, बीच में यहाँ पे केमिकल इंपल्स जा रही है, बरामदे में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है, बरामदा आपका गंदा भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स गुजर नहीं पा रही, बच्चा जो वो ऑटिज्म का शिकार है। और आप क्या देख रहे हैं, सर दर्द, आइब्रोफिन खाते जा रहे हैं, पैरासिटामोल खाते जा रहे हैं, समझिए यहाँ बात का आगाज हुआ था। लेकिन आपको मसले का पता नहीं है, मैंने आपके सामने रख दिया। तो आपने किस चीज़ को क्लियर करना है, वो सिनाप्स, द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स, उसको क्लियर करने के तरीके हैं, फिजिकल की हैं, केमिकल की हैं, हर्बल की हैं, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो आप हकीम बनिए, नीम हकीम ना बनिए। मैंने आपके सामने कितनी आसानी से, और ये चीज़ मैंने अचीव करने के लिए आई थिंक मुझे 2.5 साल एक प्रोफेसर के साथ काम करना पड़ा। फिर उसने मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे वो पार्ट दिखाया, न्यूरॉन के बीच वाला जो साइनॉप्स था, 2.5 साल से काम किया मैंने। तो वो टिश्यू मैंने देखा कि यार ये कितना इसका इन्वॉल्व, और न्यूरोडायवर्सिटी का इन्वॉल्वमेंट ही उसकी ऐसा है। यहाँ पर बात समझा नहीं सकी, क्लियर है सर? अच्छा, आगे अभी यहाँ से अब इस चीज़ को समझने के लिए ना हम मिसाल देता हूँ मैं आपको। किस किस के पास ऐसे बच्चे आते हैं जो आगे ये क्या, आई थिंक इसके बगैर भी आपको आवाज़ आ रही है जी, सभी को आवाज़ आ रही है, ये मैंने ऐसे पकड़ा हुआ फैशन के लिए बस। तो किस किस के पास अभी तक ऐसे बच्चे आए हैं जो माया ये कहती है कि ही शी इज़ अ फसी ईटर, कुछ खाता है कुछ नहीं खाता, कुछ भी कर लो इस चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। मिस 1, मिस अस्मा 2, 3, 4, फिक्सेशन 5 लोगों के पास ऐसे बच्चे आए हैं जो कहते हैं कि ये बच्चा कुछ भी हो जाए मर्जी की चीज़ खाता है बाकी नहीं खाता जी। इसकी आप मुझे साइंटिफिक लॉजिक दीजिए। बच्चा है, फूड एक खा रहा है एक नहीं खा रहा, उसकी वजह क्या है उसके पीछे? आप उसे कह देते हैं अबे नहीं खा रहा, बीवी को ना खिलाओ, कुछ और खिला लो। हमारे यहाँ मूवी रो जान गई है, फूड हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पराठा, भिंडियाँ, तोरी, मकई की रोटी, गंदम की रोटी वगैरह वगैरह। तो उसके अंदर तो हम जाते ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, वाटर है, वाइटामिन हैं वगैरह, वो तो हम रख में जाते ही ना हम लोग। तो एक बच्चा एक फूड खा रहा है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है, दूसरी फूड नहीं खा रहा जो कि स्टिल कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है। ये आप तक पैगाम पहुंचाना आज का मकसद है कि भाई आपको उसकी साइंटिफिक रीज़न समझ आए। बताइए अगर किसके पास इसका है तो मैं उससे स्टार्ट करूँ। टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा, टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा जी, टेक्सचर पसंद। हम टेक्सचर से ही बात को लेकर चलते, बहुत शुक्रिया आपने इनपुट दिया, बहुत शुक्रिया। हम टेक्सचर से बात को लेकर चलते हैं। मैंने कहा ना जब बात का आगाज़ हुआ था हम साइंस पे जाएंगे। तो टेक्सचर में क्या है? पास्ता, पास्ता सभी खाते हैं। पास्ता क्या है? मैं बात का यहाँ से आगाज़ लेता हूँ, वजह रखिएगा। पास्ता जो है वो स्टार्च है, वो कार्बोहाइड्रेट, फूड की टाइप है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। उसके अंदर क्या होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स, ये सारी चीज़ उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आप माँ हैं या बाप हैं, जिसने भी खाना बनाया, बच्चे ने खुद बना लिया, आपने उसमें डाला भरपूर मिर्चें, घी और मसाले और पता नहीं क्या क्या बना के बच्चे के आगे रख दिया। बच्चा खा नहीं रहा, माँ जिद कर रही है, बच्चा फिर नहीं खा रहा, अंडा नहीं खा रहा। अब इधर मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। आपके मुंह में एक टिश्यू है जिसको सभी जानते हैं, सेल्स का बना हुआ, जिसको आप कहते हैं टेस्ट बड्स। सुना हुआ सभी ने? अब टेस्ट बड्स क्या होते हैं? टेस्ट बड्स बेसिकली ऐसे ही हैं, तवज्जो कीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, फर्ज करें कि इस तस्वीर से बकल कैविटी का आगाज़ हो गया, तवज्जो कीजिएगा, बकल कैविटी का आगाज़ हो गया। जो बीच वाली तस्वीर है वो जो साहिब है जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, ऐनक के साथ बुजुर्ग जो हैं शेख अब्दुल बारी, ये बीच में एक टेस्ट बड है। स्टिल इज अ पार्ट ऑफ द वॉल, इज अ पार्ट ऑफ द पिक्चर मेड ऑफ वुड, वही टेक्सचर है। आगे चलते जाइए, वो मियां मोहम्मद नसीम सैकल साहब जो हैं, ये अगेन ऐसी टेस्ट बड, ये 2 टेस्ट बड बीच में लगे हुए, ठीक है। अभी टेस्ट बड जो है आपके टिश्यू का हिस्सा है, सेल्स हैं, लिविंग हैं,
होता यह है कि इन टेस्ट बड्स के ऊपर दे आर मेड ऑफ सेल्स, इनके ऊपर रिसेप्टर साइट्स होती हैं। क्या होती हैं? रिसेप्टर साइट्स, जो कि सेल्स की बनी हुई है। अगेन अब वो किस चीज़ से बनी होती हैं? वो रिसेप्टर साइट्स जो हैं वो बनी होती हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फाइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स। अगेन वही चीज़ें जिनका पास्ता बना हुआ है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है। अब टेस्ट बड के ऊपर ये वो है रिसेप्टर साइट। टेस्ट बड मैंने आपको बता दिया ये रिसेप्टर साइट है। अब रिसेप्टर साइट जो है इसके ऊपर ये एक उंगली को 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा जो कुदरती बने होते हैं वो जो है सभी। इस उंगली को भी 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए, 1 2 3, 3 पार्ट इसके, 3 पार्ट इसके, 6 पार्ट होते हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है, टेस्ट बड्स के ऊपर जो रिसेप्टर साइट है हर एक की टिप के ऊपर जो लास्ट बाइंडिंग एटम होता है वो हर इंसान का डिफरेंट होता है। जिस तरह के आपकी फिंगर टिप्स डिफरेंट होती हैं। अगर बिलियंस ऑफ पीपल हैं इस दुनिया में तो हर इंसान का ये एक नई चीज़ है शायद अक्सर लोगों के लिए यहाँ पे कि फिंगर टिप्स की तरह आपके टेस्ट बड्स के जो रिसेप्टर साइट्स हैं उनके आखिर पे लगे हुए जो एटम हैं वो हर इंसान के दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होते हैं। दैट्स द रीज़न कि हर इंसान डिफरेंट टाइप की खुराक को पसंद करता है। बात समझ आ रही है यहाँ तक आप लोगों को? अब होता यह है कि पास्ता के ऊपर नाइट्रोजन जो है वो डोमिनेंट एटम है, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर वो बच्चा आपका या मेरा उसके टेस्ट बड जो कि हर किसी के डिफरेंट हैं, अगर उसके टेस्ट बड्स की आखिरी जो टिप है वो नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जो पास्ता उसके मुंह में रखते हैं वो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं। वो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल। नो वन कैन एक्सप्लेन दैट, ना अ चाइल्ड, ना द मदर, ना द होल फैमिली। दैट्स व्हाई द चाइल्ड इज नॉट लाइकिंग द पास्ता। आपको अंडरस्टैंड करना है बीइंग एजुकेशनिस्ट, being a teacher, but there is some scientific logic behind the why now my child is eating pasta. And this is the case with all the foods. कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्लाइमी टेक्सचर पसंद नहीं करते। और हाँ, ये बात जो है ये ऐसा क्यों होता है, अगली रीज़न तवज्जो कीजिएगा, बहुत अहम पॉइंट। होता ये है एक मेन स्ट्रीम बच्चा, मैं वो डिसेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, काइंडली आपसे भी रिक्वेस्ट है, पूरी ज़िंदगी आप प्रोफेशनल लोग हैं, डिसेबल का लफ्ज़ कभी भी इस्तेमाल ना कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। स्पेशल नीड्स और मेन स्ट्रीम ये दो अल्फाज काइंडली। मेन स्ट्रीम बच्चा, स्पेशल नीड बच्चा, तो जो रखिएगा। अब मेन स्ट्रीम बच्चा जो है मेन स्ट्रीम बच्चा जो है उसके न्यूरॉन्स और अगले न्यूरॉन का जो सिनेप्स है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। उसकी केमिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है वो क्या हो रही है, नॉर्मल। जो ही वो पास्ता मुंह में रखता है वो उसको फील कर लेता है। बात समझ आ रही है? पास्ता मुंह में रखा, अगले लम्हे जुबान ने उसके दिमाग को, फीलिंग्स को, मेरे को, हर चीज़ को बता दिया कि भाई ये क्या है। इज इट पॉसिबल विद ऑटिस्टिक चाइल्ड जिसके न्यूरॉन और अगले न्यूरॉन के बीच में खलल पड़ा हुआ है? हर न्यूरॉन अगले न्यूरॉन, हर न्यूरॉन अगले न्यूरॉन के बीच में खलल पड़ा हुआ है, उसके मैसेजेस नहीं जा रहे, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन नहीं जा रहे। इज ही or she able to understand कि मेरी माँ मेरे मुंह में क्या डाल रही है? क्या बताइए? वो बच्चा फील करेगा कि मेरे मुंह, उसके मुंह में उसको समझ नहीं आ रही क्या जा रहा है उसके मुंह। वो अनाइड हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो कभी भी नहीं उस चीज़ को खाता। तो ये उसकी एक फिजिकल नीड है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है जो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये मैंने एक मिसाल आपको दे दी कि बच्चे जो हैं न्यूरो डाइवर्सिटी के साथ वो फूड फसी ईटर क्यों होते हैं। बात समझ आ रही? सभी को क्लियर है? आपने यू पीपल आर एजुकेटेड माशाल्लाह, you are like you done a couple of degrees in all your subjects, तो आपको इसको साइंटिफिकली लेके चलना है। अब एक जो चीज़ है आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए काइंडली। मैंने काफ़ी चीज़ें आपको अभी तक इस पॉइंट तक बताई, आप मेरे साथ काइंडली शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। कि बच्चे जो होते हैं न्यूरो डाइवर्सिटी के साथ वो बाउंसिंग क्यों करते हैं? आई एक्सप्लेन दैट। फॉर एग्जाम्पल न्यूरो डाइवर्स चाइल्ड इज सिटिंग लाइक दिस, वैसे बैठे हुए हैं वैसे ही करते हैं कंटिन्यूसली। पुराने वक्त में कहते थे इसको जिन चिमट गया, इसके अंदर जिन है। ठीक है जी, आज थोड़ी हालात बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या वजह है बच्चा बाउंस क्यों कर रहा होता है? Neurodiverse child, they are used to with forelimb and hind limb flapping. Forelimb हाथ,
Have you noticed that? Legs flapping, tiptoeing. Tiptoeing flapping है ना, वो flapping legs से करेंगे तो गिर जाएंगे. तो basically tiptoeing is a sign of flapping. ठीक है? तो वो क्यों flapping कर रहे हो? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैंने आपको ये बात बताई है कि आपने कहाँ जाना है, जेनेरिक बात नहीं करनी, जज्बात की बात नहीं करनी, आपने कहाँ जाना है, आपने उसके टिश्यू में जाना है, आपने उसके सेल में जाना है, आपने उसके न्यूरॉन में जाना है, आपने उसके केमिकल टेक्सचर में जाना है, और फिर वो सारी चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है कि वो क्या कर रहा होता है. अब एक आखिरी मिसाल से मैं देता हूँ आपको. आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी तशवीर चल रही है कैमल मिल्क की. Neurodiverse child, camel milk is suitable, making life very comfortable for mom and for the child as well. What's the reason behind? Chemical milk को जो ऊँट है वो बीच में कोई डाल के बेचता है, कोई शीरा, कोई शक्कर, कोई जादू शादू. जी वो ऐसे होता है. मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ. मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करता हूँ कि आपको थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, आप सोचें और आपको आदत भी पड़े और आप इस आदत को आगे ट्रांसफर. until unless you question you don't learn. हम बात करते इसको बाई से हिटर भी समझ जाते हैं. बात इंग्लिश में मैंने नोट किया जो बड़े स्टेटस के लोग होते हैं वो माइंड कर जाते हैं. हमसे सवाल किया हमारी कौन को इसकी आदत डालनी पड़ेगी. until unless you question something you cannot learn that thing at all. क्वेश्चन तक आप नहीं इसको लर्न कर सकते. मुझे ये बताइए कि कैमल मिल्क उस बच्चे को वो वाकई प्रूवन स्टडी कि कैमल मिल्क जो है वो जो ऊँटनी का दूध है वो न्यूरोडाइवर्स बच्चे के लिए हेल्पफुल होता है. उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. होता ये है वो जो न्यूरोडाइवर्स बच्चा होता है वो जो रखिएगा न्यूरोडाइवर्स बच्चा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ADHD एस्पर्जर वगैरह वगैरह वो ये करता है वो अपने इमोशनल बैलेंस के लिए क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन उसको आपकी तरह इंफॉर्मेशन नहीं मिलती लाइट की स्मेल की आवाज़ की उसको ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है. उसके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है. उसको फिल्टर करनी पड़ती है. उसको 10% को 10% में कन्वर्ट करना पड़ता है. उसके अंदर प्रोसेसिंग एलिमेंट लगा होगा उसकी फिजियोलॉजी में. ठीक है. उस इमोशनल बैलेंस को लेने के लिए तो जो है उस इमोशनल बैलेंस को लेने के लिए वो बच्चा सारा दिन फ्लैपिंग करता है, टिपटॉइंग करता है, बाउंसिंग करता है. ये सारी चीज़ें हैं उसमें और वो चीखता चलाता है सारे का. इन चीज़ों में करते हुए अब क्या होता है वो अपने जो न्यूरॉन्स हैं उनको खाली कर बैठता है. उसके जो न्यूरॉन जो वो इम्पल्स जा रही है ना उस पूरे इमोशनल बैलेंस को लेने के लिए उसके न्यूरॉन्स एम्प्टी हो जाते हैं. न्यूरॉन बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं. और कौन से उसके न्यूरॉन्स में कौन से आयन्स जो है वो भी एम्प्टी हैं. Positive, sodium and potassium, and camel milk is full of sodium and potassium ions. बात समझ आ रही है आपको? तो वो कैमल मिल्क आप उसको देते हैं तो बच्चे के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है वो काम डाउन हो जाता है कि भाई उसको वो चीज़ें मिल गई हैं. और हम क्या कहते हैं कि भाई वो कैमल मिल्क ने बड़ा मौजज़ा कर दिया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है उसके अंदर. तो अभी इसमें जो मैंने सब बिल्कुल आपका पैगाम उन तक पहुँच गया. मेरी ये बड़ी है प्रॉब्लम. हम अब लाइफ के आपने मेंशन कर दिया. मैं मालूम चाहता हूँ आखिरी 2 पॉइंट्स. सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. जिस टॉपिक में है तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी मैं ऐसी आदत को कहूँगा कि आपने थोड़ी पिक्चर जी. अब ये है आखिरी मुद्दा आपको बढ़ने लगा. आखिरी मुद्दा जो हम इन चीज़ों को साइंटिफिकली डील नहीं ना कर रहे आप और मैं इस वजह से सोसाइटी जो है वो मिसकंसेप्शंस का शिकार है. सोसाइटी उसका इलाज मैंने आपके सामने DIG का नाम लिया, IG का नाम लिया, डायरेक्टर FIA और IG FIA किस लेवल के बंदे. मतलब ये नाम लेने का मुराद ये है कि वो उनके घरों में बड़ा पढ़ा लिखा माहौल था लेकिन वो लोग किस चीज़ से इलाज करवा रहे हैं. होम्योपैथी, उमरा, तावीज़, एलोपैथी, हर्बल ट्रीटमेंट और अभी एक नई चीज़ आ गई है स्टेम सेल थेरापी. स्टेम सेल थेरापी नई चीज़ आ गई है. अब देखिए ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नाम पे वजह कीजिए कहानी. ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आखिरी नाम आपको सारी स्टोरी दे रहा है यार. फिर आप मतलब क्यों तो हम बात का शिकार है. डिसऑर्डर
there are few things in yourself and myself common, 5 चीज़ें हैं, ठीक है। अब इन भाई में वो बेतरतीब पड़ी हुई है, मेरे अंदर भी बेतरतीब पड़ी हुई है। इन भाई के अंदर वो बेतरतीबी थोड़ी कम है, मेरे अंदर बेतरतीबी थोड़ी सी ज़्यादा है। अब आप लोगों ने ये हेल्प करनी है कि मेरी उस ज़्यादा बेतरतीबी को इस भाई की निस्बत के साथ थोड़ा तरतीब में लेके आना है। That's the whole story। वो हर किसी के अंदर बेतरतीबी पड़ी हुई है। ये नहीं कहा आर्टिस्टिक बच्चे के अंदर, आर्टिस्टिक बच्चे के अंदर थोड़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। आप हेल्प करें, आप प्रोफेशनल हैं, उसको थोड़ा सा वो डिसऑर्डर को ऑर्डर में करना है। ये सारी न्यूरोडाइवर्सिटी मिसकंसेप्शन आ रही हैं, आप लोगों ने काम करना है। अभी इसमें जो था आखिरी बात कि हमें करना क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं। हमने अचीवमेंट्स की बात की, स्कूल बन गए, इदारे बन गए, मदरसे बन गए। लास्ट पॉइंट, वेरी लास्ट एंड वेरी इंशाल्लाह शॉर्ट, कि हमारे गोल्स ये हैं कि हमने न्यूरोडाइवर्सिटी पे रिसर्च करनी है। आपको बता रहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद माई ऑल ऑब्लिगेशंस, विद ऑल हम्बलनेस, हमारे पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं है। हम बेतुका चल रहे हैं, हम पैरास्टामोल आइबुप्रोफेन खा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी बात को खुदा रहा कोई गुस्सा ना कीजिएगा, माइंड ना कीजिएगा। हमें साइंस का, न्यूरोडाइवर्सिटी की साइंस का अलग वेगा नहीं पता। मैं ये अल्फाज कहते हुए ये तनाज़ा बिल्कुल नहीं देना चाहता कि मैं भी बड़ी बुलाऊँ, खुदा ना हादसा ना होगा। बड़े इज्जत के साथ मैं इस बात को शिद्दत से इसलिए कहता हूँ, अभी 2-3 घंटे के सेमिनार में आपको फील हो गया होगा कि हम किन मिजाज के साथ इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हमें हमारे गोल्स क्या आपके सामने रखता हूँ। पहला गोल हमारा ये है कि हमने एम्पैथी वोट लेना है। एम्पैथी वोट ये होता है, ये कोई गलत बात नहीं है और नेगेटिवली इसको काइंडली लीजिएगा। आपके मुआशरा में वो वेल ऑफ लोग, वो इन्फ्लुएंस वाले लोग जिनको अपना इस चीज़ का दर्द है, जिनका बेटा भतीजा पोता नवासा इस फील्ड में है, उनको इन्वॉल्व कीजिए, एंगेज कीजिए, नेटवर्किंग में लेके आइए। वो अगर एजुकेशन नहीं लेना चाहते तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अगर सही है तो आप लोगों ने करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चैरिटीज़ बनाइए। यूके में मैं ये पैगाम आपको बिल्कुल क्लियर देना चाहता हूँ, मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ जिस इदारे में, हमारे पास सर आपकी तवज्जो से आप सभी को काइंडली ये पैगाम पहुँचाइएगा। आपके पास 2-3 चीज़ें चाहिए। आपकी चैरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर हो, उसका बैंक अकाउंट हो, सालाना ऑडिट होता हो, 3 चीज़ें होती हों। वहाँ पे हर साल मेरी कोशिश होती है 1000, 2000, 4000 जो मेडिकल बेड हैं वो दिए जाएँ। जो स्कूलों के वो होते हैं फर्नीचर बड़े मॉडर्न और बड़े पॉश किस्म के, वो दिए जाएँ। हमारे यहाँ पर जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर चीज़ों की बहुत कमी है, तो चैरिटीज़ रजिस्टर करें स्पेशली बच्चों के लिए। और 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, वो 3 चीज़ें करें। और वहाँ पे इतने फंड्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं जो जिसमें आपकी हेल्प की जा सकती है। इंस्टीट्यूशन बनाएं, जैसे कि मिस्टर स्माइल बनाया, सेमिनार्स करें, मीटिंग्स करें एज मच एज पॉसिबल, कॉर्नर मीटिंग्स करें, छोटी मीटिंग्स करें जो आपके गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं। गवर्नमेंट, विदाउट गवर्नमेंट यू गाइस कैन नॉट अचीव द टास्क। The target is too high. The task is almost unachievable. It's not unachievable. I should amend my words. It is achievable. लेकिन आपको 100 साल लग जाएगा। तो वो टारगेट और टास्क अगर आप 20 साल में लेना चाहते हैं तो MNAs को, MPAs को, जो आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं, ईवान बाला में, ईवान ज़ेरी में, सेनेट वगैरह, इन सभी को इन्वॉल्व कीजिए काइंडली। तभी उनको शऊर आएगा, समझ आएगी, वो इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। मिनिस्टर्स को लेके आइए। और यहाँ पे मेरी बात का इख्तिताम होता है। मैंने कोशिश की, बहुत दूर से आपके पास आया कि मैं इस बात को एक डिफरेंट एंगल से आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स दे सकूं। पुरानी गुफ्तगू किसी को मेरी कोई बात नामुनासिब या भली ना लगी हो तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। मेरे लाइक यहाँ पर भी और इंग्लैंड में भी कोई हुक्म हो वो मुझे आप बता सकते हैं। मेरे वो दायरा इख्तियार में होगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँ। अल्लाह पाक आप सभी को बहुत अच्छा उस्ताद बनाए। मुझे भी आप लोगों से बहुत सीखने का मौका मिला। मैं आपके वक्त का, आपके आने का, आपके कंट्रीब्यूशन का, सभी का फर्दन मशकूर हूँ। मिस अस्मा, आप जो काम कर रही हैं, आपकी पूरी टीम, आपको खैर खा फंड देने वाले मौलवी इमरान साहब, अस्मा साहिबा के वालिद साहब, आपके स्कूल की सारी टीम, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये बातें हाँ स्टेज पे कही जाती हैं, मैं बोलना चाहता हूँ आखिरी फ्यू सेकंड्स। ये बातें वो रवायत का हिस्सा होती हैं और ये बड़ा मज़ा आया जी मेरे को, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया।
لیکن یہ میرے الفاظ I'm saying all these words from my heart and I do mean these words. کہ آپ لوگ آئے انوالو ہوئے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس تحریک کا حصہ بنیں اور اس کو سائنٹیفکلی لے کر چلیں. مس اسما اینڈ آل آف یور ٹیم انکلوڈنگ یور فادر عمران صاحب سر آپ میں معذرت چاہتا ہوں آپ کا نام عاطف منیر صاحب ساتھ آپ لوگ ایچ ون آف یو از ون مین آرمی بلیو می. وہاں پہ ہمارے پاس بلینس کے ریسورسز ہیں. ایک سر عاطف صاحب میرے اسکول ایک اسکول ہے میرے پاس وہاں پہ اس میں سر 112 بچے ہیں سر اور 112 بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس جو اکیڈیمک اسٹاف ہے وہ 67 ہے. اکیڈیمک اسٹاف جو نان اکیڈیمک اسٹاف ہے وہ آئی تھنک 26-27 کا ہے. جو گاڑیاں ہمارے پاس ان کو ٹریول دینے کے لیے وہ آئی تھنک ہمارے پاس 23 ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ریسورسز وہاں پہ کتنے ہیں اور اس کے باوجود مائی پوائنٹ از ناؤ پلیز بی اٹینٹو ہیئر اس کے باوجود وی آر اسٹرگلنگ. اس لیول کے ریسورسز ہونے کے باوجود میں توجہ چاہتا ہوں سر اس لیول کے ریسورسز ہونے کے باوجود وی آر اسٹرگلنگ ایٹ دس ٹائم آف دس فائنینشیل سیناریو آل اوور دی گلوب. ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اسپیشل نیڈ کو لے کے چلنے میں اور آپ اس کے پیرالل مس اسما کام کر رہے ہیں. So this is highly credit to Faisalabad. Please keep it up. This is beautiful work. Allah Ta'ala ہم سب کا حامی.